Students, how are you all? I hope you all are fine. So, my dear students, let's start English class. Today, we are going to read a new poem, that is chapter number 15, The Restless Beauty. So, my dear student, what's the meaning of restless beauty? The meaning of restless beauty is where the beauty can't take rest, means beauty is forever, it cannot stop. Here, the restless beauty is telling about a deer, which is in this poem. This poem is written by O.J. Thomas. Here, the poet says that I moved out of my bed to the window with an empty mind to watch the rising sun. A deer, as I watched, came out through the thicket of weeds and bushes amongst the trees. Here the poet says that when he moved out of his bed, he just go to the window and with an empty mind he was watching to the rising sun. And that time he has seen a deer and who was out through the thicket. What's the meaning of thicket? A number of shrubs, bushes growing together. Means the deer is coming over the thicket, coming through the thicket of weeds and bushes amongst the trees. Means is coming from the bushes, from the trees, amongst the trees, मतलब trees में से और bushes में से निकलता हुआ दिखाई दिया. I could see a part of its head munching grass. Means the poet said that I was seeing his head only by munching grass. When he was munching the grass, his head was visible to him. It slowly got itself delivered from the mess, struggling hard with its hind legs. It climbed down the little slope to my courtyard. मीन्स वो बड़ी मुश्किल से अपने हिंड लेग्स, मतलब जो पीछे वाले लेग्स होते हैं हिरण के, उससे बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को वहाँ बुशेस में से निकालता हुआ बाहर आ रहा है और ऊपर चढ़ रहा है, कहाँ? मेरी कोर्टयार्ड की तरफ. ठीक है. इट स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट एज आई वॉच्ड, framed onto my window on the first floor. Means it stood there for a moment, थोड़ी सी देर के लिए खड़ा होता है. And I was watching from my window and I just stared him. मैं ऐसे खड़े जैसे कि एक फ़ोटो फ्रेम खड़ा होता है. And I was just watching him, watching the deer. And the deer stood there unaware of my presence. He don't know I was watching him. It ate the grass undisturbed for some time, shaking its apology of a tail, and moved forward. Means it ate the grass undisturbed for some time. Means without any disturbance, he कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, फटाफट वो घास खाने की तरफ, उसका ग्रास खाने की तरफ उसका ध्यान है. शेकिंग इस अपोलॉजी ऑफ अ टेल, वो छोटी सी टेल है, वो उसको शेक कर रहा है. एंड आई कुड सी इट रेज इट्स हेड ऑफन इनफ to survey the field around, alert and watchful, as some pebbles rolled down the loose soil. Means the poet said that I could see him, his head often enough. मीन्स ही रेज इट्स हेड, मतलब वो अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर उठाता है, इधर उधर देखता है. देन ही स्टार्टेड ईटिंग द ग्रास एंड ही वॉज अलर्ट एंड वॉचफुल. मतलब वो अलर्ट है कि कोई मुझे आके पीछे से पकड़ ना ले या मुझे कोई जानवर खाने ना ले, लाइक दिस. कोई पर्सन मेरी तरफ ना आ जाए, लाइक दिस ही इज़ बीइंग अलर्ट. एज सम पेबल्स रोल डाउन द लूज सॉयल. मीन्स उसके पैरों से वो पेबल्स, उसके पैर उसमें धंस रहे हैं. ठीक है. द डो वॉज रेस्टलेस. डो यहाँ पे बोला गया है हिरण को, मेल हिरण को. टिमिड एंड एंशियस, डरपोक सा है वो. एंड एंशियसली, मतलब बार बार इधर उधर देख रहा है. लाइक अ मेडन वेटिंग फॉर हर लवर, जैसे कि कोई भी गर्लफ्रेंड अपने लवर का इंतज़ार करती है. एज द वॉच द लीव्स व्हेन दे फ्लटर, जैसे ही लीव्स हिलते हैं उसको ऐसा लगता है कि मेरा साथी आ गया है. लाइक दिस हिरन इज़ बीइंग अलर्ट.
and closely analyzed as monkey or a bird or the footsteps of an animal nearby. वो कोई भी monkey या bird कोई भी footsteps अगर सामने animal के सुनाई देते हैं तो alert हो जाता है. Like a general surveying the enemy territory, जैसे कि soldiers army के soldiers जो होते हैं वो general जो होता है अपनी enemy territory को धाक में लगा के बैठा, मतलब अलर्ट रहता है कि कोई एनिमी हमारी टेरिटरी पे हमला ना कर दे. आई स्टिल वॉच द प्रिटी डियर, मैं अब भी उसे वॉच कर रही हूँ, देख रहा हूँ. लाइक पोएट सेड कि आई स्टिल वॉचिंग द प्रिटी डियर as it could still enslave the mind of a modern Sita. Suddenly it jerked all over, it ran away. It could still enslave the mind. Enslave is means create a magical attraction. मतलब जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड अपने लवर के लिए इंतज़ार करती है. लाइक दिस द डियर इज़ ऑल्सो फीलिंग समथिंग लाइक दैट कि कोई उसके पास ना आ जाए, मतलब वो डर के मारे है और वो जो गर्लफ्रेंड है अपने लवर का इंतज़ार कर. सडनली जर्क्ड ओवर, इट रैन अवे. अब वो जो डियर है वो अपने एकदम डर के मारे पर अपना फेस करके उसको जर्क करता है एंड रैन अवे, भाग जाता है वहाँ से. आई थॉट ऑफ अ ब्यूटीफुल शेप and the dark brown meat on the dining table of a drunkard. जो ड्रंकर्ड होते हैं उनके बारे में अगर मैं सोचता हूँ कि उनके टेबल पे जो है मीट रखा होता है डाइनिंग टेबल पे. हु सर्चेस फॉर हिज माउथ, जो कि इतने ड्रंक कर चुके होते हैं कि वो अपने माउथ तक उस मीट को ले जाने में भी सक्सेसफुल नहीं होते. एंड विद अनस्टेडी हैंड्स टू गल्प द पीसेस, उनके हैंड्स जो होते हैं वही है कि अनस्टेडी होते हैं, मतलब वो इधर उधर हिलते हैं और उसके मुंह तक जाने में तक भी उनको मुश्किल हो जाता है वहाँ तक ले जाना, बिकॉज वो इतना ड्रंक किया हुआ होता है. पास्टिंग ग्रीस ऑल ओवर हिज फेस, उनके फेस पे पूरा ग्रीस तेल लगा हुआ होता है एज अ ग्रेस. टू नॉक एट द क्रिएशन एंड द वर्ल्ड अराउंड इन हीज अनएंडिंग डांस ऑफ annihilation. The restless beauty with tragedy inscribed deep often disturbs the peace of my mind. मतलब कि कैसे लोग होते हैं जो कि इसका मीट बना के उन्हें खा जाते हैं, कि उसको सोच के मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ. ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है मुझे. द रेस्टलेस ब्यूटी विद ट्रेजेडी inscribed deep often disturb the peace of mind. It in unprofitably non-descript moments means मैं वो मोमेंट को नहीं भूल पाता जब लोग उसको जब सोचता हूँ उस मोमेंट के बारे में कि कैसे वो लोग इसको मीट के रूप में खा जाते हैं. कि दिस इज़ अ रेस्टलेस ब्यूटी, इतनी अच्छी ब्यूटी जो आज मुझे देखने को मिली है विच आई कैन नॉट फॉरगेट. ठीक है, तो ये मोमेंट्स जो हैं ये कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं. So our poem has completed here. Thank you. Have a nice day.